Today we'll talk all about MPSTME, NMIMS's BTech College. We'll know about the entrance examination, paper pattern and syllabus, कैसा रहेगा. We'll also see कि campuses कौन सी है, courses कौन से offered है and fee structure कैसा है. Placements भी discuss होंगे. We'll also see KJ versus MPST comparison and a little bit of insider information from my experience as a student. So to know all of this, please watch the video till the end. Welcome back to CS Concept Simplified. So guys, in this video we are going to discuss about NMIMS Mumbai. NMIMS Mumbai का ऑलरेडी फेज 1 काउंसलिंग तक खत्म हो चुका है. अभी फेज 2 काउंसलिंग है. सो फेज 2 काउंसलिंग की एडमिशन प्रोसेस क्या है, NMIMS CET की एग्जाम का पेपर पैटर्न किस तरीके से है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्लस KJ सोमैया वर्सेस NMIMS कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, NMIMS वर्थ इट है या नहीं, कौन से कोर्स की कौन से कैंपस में कितनी फीस है, प्लस प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी क्या है, बीटेक में अच्छी है या MBA टेक में अच्छी है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ संकेत शाह फ्रॉम DJSC Mumbai and we have Sanvi from NMIMS from Computer Engineering branch. So फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना. इस चैनल पे आप सभी को MHT CET रिलेटेड, आपके प्राइवेट कॉलेज काउंसिल रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है. सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो. और हमने NMIMS का नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है. सो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख देना. और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके जितने भी NMIMS के स्टूडेंट्स हैं वो सबकी कम्युनिटी बनी हुई है. सो आप वहाँ पे रहोगे तो आपको भी आइडिया लगेगा कि अभी करंट प्रोसेस क्या चल रहा है, कौन से स्टूडेंट को कौन सी रैंक पे कौन सी ब्रांच ऑफर्ड हुई है, सब चीज़ें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करेंगे. सो NMIMS स्टूडेंट्स प्लीज काइंडली ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो Sanvi, hi, how are you? Hi Sankeet, I'm good. How are you? I'm fine. So what's about your view about NMIMS? College-wise, it's very good. It Yeah. gives you a very full experience. Yeah. Mhm. So have you appeared for the NMIMS CET last year, na? Yes, I've Yeah. So given the can you, paper. so can you explain me the process about the paper pattern, timing, and that's all? Right. So there are 5 sections. There's physics, chemistry, maths, logical reasoning, and verbal reasoning. So physics, chem, and math PCM are 30 marks each. You get 30 minutes to solve every question. And there are total 90 questions, 30, 30, 30 in each. And then logical intelligence has 20 questions, which you're supposed to finish in 20 minutes again. And verbal reasoning के लिए आपका 10 marks है, 10 minutes for 10 questions. So total, it's a 120 marks paper in 120 minutes. Okay, that's great. And even if people are applying for pharma tech, it's a 5 years pharmacy plus MBA. So they can opt for biology as well. So if you opt any biology or mathematics, you can do pharma tech also. It's not fixed कि अगर आपने biology लिया था pharma tech करोगे, आप mathematics लेके भी pharma tech में admission ले सकते हो. Right. Yeah. So that's one insight. Right. So this is your NMIMS CET 2024 paper pattern. Yeah. So about Sanvi, can we give a brief about NMIMS campus? Right. So there are 8 campuses. As you can see on the screen, there's Mumbai, Shirpur, Bengaluru, Hyderabad, Indore, Navi Mumbai, Dhule, and Chandigarh. Mumbai campus is given the first priority always. Yeah. The amenities are very good. The faculty is good everywhere, but Mumbai is, of course, very accessible to the city also. Yes. And the second priority we should give for Shirpur, na? Right. Yeah. And third is for Navi Mumbai campus. Navi Mumbai. Firstly, opt for Vile Parle Mumbai campus. It's a recently they have constructed a building, a very high 5-star type building. So infrastructure wise, Vile Parle campus is the best campus. So always first priority Vile Parle Mumbai main campus. And the placements in Vile Parle campus are also awesome. They have the highest placement records as compared to other campuses. Right. Even one insider insight, if you opt for the Shirpur campus also, your placement would be happening in Vile Parle Mumbai campus only. Shirpur के बच्चे आपने फाइनल ईयर में मुंबई के कैंपस में आते फॉर ऑप्टिंग फॉर प्लेसमेंट्स फॉर द 2 months. सो अगर आपने शिरपुर में भी एडमिशन लिया ना, आपको एट लास्ट 4th ईयर में मुंबई में ही आना है प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि दोनों का प्लेसमेंट सेल एक ही है विले पार्ले में. या
So branches की बात करें, so just wait for a minute. Yeah. Yeah, everything is going good. या सो अभी हम ब्रांचेस की बात करते हैं। सो आपके कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है। जैसे आप काउंसलिंग में ऑप्ट करोगे, एग्जाम दे के आओगे, आपको मेल आएगा रिगार्डिंग काउंसलिंग। सो काउंसलिंग में ये आपको ऐसे मेल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जब आपका एडमिशन की काउंसलिंग के रिगार्डिंग मेल आएगा तो उसमें आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका आईटी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिर्फ सिरपुर के कैंपस में है। एंड गाइज डोंट इतना मतलब इतना सोचना मत कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लूँ या कंप्यूटर इंजीनियरिंग लूँ, दोनों एक ही है। जस्ट ऐसा है कि विलेपार्ले कैंपस में ओल्ड बिल्डिंग है, तो उनका जो पहले उनको जो रजिस्टर्ड हुआ था वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्सेज के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ था। और जितने भी अपने ओल्ड कॉलेजेस है आप देख सकते हो, सीओईपी है, विजेटीआई है, डीजे सांगवी है, सब में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही है। नए नए कॉलेजेस जो एस्टेब्लिश्ड हुए उनमें ये नेम को रीनेम करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर दिया था। तो दोनों सेम ही है फर्स्टली। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम है। फिर आपका कंप्यूटर डेटा साइंस इंजीनियरिंग है, एआई इंजीनियरिंग है, एआई एमएल इंजीनियरिंग है, बट वो शिरपुर कैंपस में है। फिर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद 3+1+1 कोर्स विच सनवी इज ऑप्टिंग, and computer science engineering with data science. Also, we have AIDS course. AIDS is offered in Navi Mumbai Indore campus only. आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आराम से पीडीएफ रीड करो, फीस स्ट्रक्चर देखो कि कौन से कैंपस में कौन सी फीस है। बाकी ऑलवेज ऑप्ट फॉर द मुंबई कैंपस विलेपार्ले, फर्स्ट प्रायोरिटी। So Sanvi, can you give a brief about the infrastructure as you have spent 1 year in NMIMS? So it's one of the swankiest buildings and infrastructures compared to all colleges. I'm very sure of that. Yeah. 8 floors ka building hai. There are 3 underground floors also. One of them is occupied for the canteen. Yeah. And higher floor pe there are different departments that are functioning. They have a lot of new amenities also that they've added. सो आप लोग देख सकते हो नीचे कैंटीन है, ऊपर सारे फ्लोर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रन होते हैं। आपकी जितनी ब्रांचेस है सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग फ्लोर्स पे रन हो रहे हैं। सो कैंपस वाइज इट्स अ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ओवरऑल इन मुंबई। अगर आप इसको कंपेयर करोगे केजे सोमैया के इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो केजे सोमैया से तो फार बेटर है। केजे सोमैया में अभी भी ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पीसी लैब्स भी इतने वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। बाकी अगर आप एनएमआईएमएस एसवीकेएम के कॉलेजेस में जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको टॉप नॉच मिलने वाला है, ये चीज याद रखो। So, as a comparison with KJ Somaya, just a brief. So, KJ Somaya से NMIMS is far better. प्लेसमेंट वाइज भी अभी केजे सोमैया का ट्रेंड भी अभी लोअर ट्रेंड पे जा रहा है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स भी बहुत कम हो रही है कंपेयर टू एनएमआईएमएस। एनएमआईएमएस थोड़ा अभी ग्रोथ लेवल पे है, मतलब ग्रोइंग कॉलेज है एंड इट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो ऑलमोस्ट उनको भी अपना नाम बनाना है, जस्ट लाइक एमबीए में नाम है उनका एनएमआईएमएस का, अभी उनको बीटेक में भी अपना नाम बनाना है। So they are working great for making their name. So बाकी आप amenities, Sanvi, can you elaborate about the amenities? Sorry. Right. Library is very huge, and unka jo book collection hai is also very vast. So it's really helpful for students. Auditorium though hai, there's one large auditorium and there's one smaller one which looks a bit like your theaters. They've also recently created a gym. There's a separate gym for girls and boys. They have a small lawn section on the 7th floor, and their labs are first class. So they have hydraulics labs that's in construction. They have the 3D printing labs that are made. There are many labs, physics labs बहुत अच्छे हैं उनके, and I mean you'll get the best help from lab assistants also. So anything that you need for projects and all, they're very hands-on with all of that stuff. Okay, so amenities wise भी आपको सारी amenities मिलेगी, just as a top niche private universities में मिलती है। Right. Yeah. So let's talk about the placements. सबको यही है कि भैया प्लेसमेंट्स क्या होगी, 4 साल के बाद क्या जॉब लगेगी या नहीं। सो प्लेसमेंट वाइज एनएमआईएमएस इज अ गुड फॉर इन मुंबई। आप महाराष्ट्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो मुंबई में तो टॉप 1 पे एनएमआईएमएस आता है। सेकंड प्रायोरिटी हम केजे सोमैया को देते हैं। Right. So first priority NMIMS. NMIMS offers an average package for a BTech plus MBA Tech is 8.05 LPA. Right. And the highest domestic package goes here is around 40 LPA. The highest international package offered is 1.22 crore per annum. Yeah.
सो बाकी अच्छी खासी टॉप नीच कंपनीज आती है. सो प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा है NMIMS फॉर इन द सिनेरियो ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. आई एम नॉट राइट. टॉकिंग अबाउट दी मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हो गए, डीजे सांगवी हो गया, SPIT हो गया, अपना VJTI हो गया, वो सब तो अलग मुंबई यूनिवर्सिटी में आते हैं. प्राइवेट करेक्ट. कॉलेजेस में NMIMS इज इन टॉप नॉच. राइट. या बाकी अगर आप सोच रहे हो कि भैया बीटेक करे MBA टेक करे क्या होगा, दोनों में क्या रहेगा, सो सनवी थोड़ा आइडिया दे सकती है, फिर मैं अपना आइडियाज दूंगा. Correct. So, like we've discussed, a lot of students are very curious about this BTech, but MBA Tech system integrated. But a lot of parents are always doubtful कि MBA Tech करेंगे तो वो MBA डिग्री का कोई वर्थ है कि नहीं. या तो अगर आपको फ्यूचर में MBA करने का प्लान नहीं है, एक मास्टर्स डिग्री करने का और 2 साल और देने का प्लान नहीं है, तो आप MBA टेक के लिए जा सकते हैं. उसमें आपका 5 इयर्स में BTech प्लस MBA टेक, MBA दोनों डिग्रीज आपको मिल जाएगी एंड यू कैन चूज योर स्पेशलाइजेशन इन BTech. और अगर आप 2 साल अच्छे से देना चाहते हैं, इफ यू हैव दैट टाइम, इफ यू हैव कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आप MBA अलग से कर सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू विथ योर 4 इयर्स BTech डिग्री राइट नाउ. Okay, that's great. So I just brief you. If you are opting for an MBA Tech, so MBA Tech is a 5-year program, 4 years plus BTech plus 1 year on MBA. In MBA, you can choose various different branches of MBA like HR, marketing, finance, operations. So you can choose any of them and you can have a specialization for an MBA. MBA Tech is good for placements because you have two routes open. One is in the tech side, as you have done your BTech in computer and related stuff. And second, your routes open for an management side placement. So मैनेजमेंट रोल्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, टेक रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. सो ये फायदा आपको रहेगा प्लेसमेंट में इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर MBA टेक. व्हाइल इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बीटेक, अगर आपके प्लान्स है कि आगे फ्यूचर में आपको मास्टर्स करना है, अच्छे खासे और अच्छे कॉलेज से MBA करना है, सब बीटेक लेना. बट अगर आपके प्लान्स नहीं है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, अभी तक सिर्फ मुझे प्लेसमेंट अच्छी खासी चाहिए, तो आप यहाँ पे 5 इयर्स MBA टेक प्रीफर कर सकते हो. इवन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो MBA टेक करने के बाद वापस से MBA भी करते हैं. यहाँ पे 5 साल MBA टेक कर लिया, MBA का थोड़ा अच्छा सा नॉलेज भी आ गया, उसके बाद वापस से उन्होंने कैट की एग्जाम दी, अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में गए, IIMs में जाके वापस से MBA भी करते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स है. सो यू कैन ऑल्सो हैव दैट चॉइस. सो ये था. You can always keep MBA Tech as a fallback. मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि you treat it like that, but just in case आपको BTech में आपका specialization नहीं मिला, तो MBA Tech is a good option to consider. And I have a lot of friends in the MBA branch who are very happy with their degree. तो अच्छे से आप करेंगे तो आपको एक बेसिक फाउंडेशन MBA का अच्छा मिल सकता है जो आपको बाद में जाके बहुत हेल्प करेगा. या करेक्ट. फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी BTech, सेकंड प्रायोरिटी शुड बी MBA Tech. दोनों प्रोग्राम्स अच्छे हैं, दोनों आर टॉप नीच प्रोग्राम्स. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी प्लेसमेंट्स की तो हुई, बट कंपनी कौन सी आती है. सो कंपनीज में आप देख सकते हो डोमेस्टिक रिक्रूटर्स, सारी मेजर कंपनीज यहाँ पे आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल SVKM कॉलेज है, तो SVKM में आपका NMIMS भी आता है, मिठी बाई भी आता है, डीजे सांगवी भी आता है, मुकेश पटेल भी आता है, सब एक ही अंडर SVKM में आते हैं. SVKM के बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप से बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है. सो यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी बहुत अच्छे टाई अप्स है. आप स्क्रीन पे देख सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज. मोस्टली वर्जिनिया टेक का जो एक प्रोग्राम है 3+1+1 जो सनवी प्रीफर्ड किया था सनवी ने. सो सनवी, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द प्रोग्राम? So it's called the 3+1+1 or 3-1-1 program. It provides you 3 degrees within 5 years. 3 साल आप मुंबई कैंपस MPSTA में रहेंगे एंड 2 साल आप वर्जीनिया टेक ब्लैक्सबर्ग कैंपस में जाएंगे. वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस का डिग्री मिलेगा. And then over there, once you go for your bachelor's degree, you will get a cybersecurity and master's में business administration है. What happens is कि 3 साल आप जब यहाँ usually ऐसा डिग्री 5 साल में देना is a very high advantage in Indian perspective also and foreign perspective also because it's very well rounded. आपको बहुत सारे different courses मिलता है. Management related, accounts related, finance related, extra additions है which are very good. And very important skills to have in the current scenario because अगर आप बस BTech में रहेंगे और आपको बाकी skills नहीं आता है तो it's a drawback for you. You need to stand out. So ये course आपको stand out करने में help करता है. Yeah.
So Virginia Tech is also a ranked university, ranked Right. 21 in US. Right. It's a great name in US Mhm. market. So अगर आप वर्जिनिया टेक ले भी रहे हो ना 3+1+1, तो Mhm. आपको वहाँ पे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है ना फॉरेन में बहुत अच्छी मिलती है. इवन Correct. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आप इंटरनेशनल पैकेज देख रहे हो ना वो यही Correct. से जाते हैं. Correct. सो ये है. And सो गाइस one ये था. very important thing to remember is that उनका campus के साथ Amazon का वो है. So they're Tie-up. making a new correct tie-up है. So they're making a new campus called Innovation Campus. So Amazon के साथ उन्होंने MOU किया है कि they will have a lot of students who will be going from there. So if you play your cards right and work really hard, you can get in that kind of organization too. या सो ये हुआ थोड़ा बहुत एनएमएमएस के ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अभी Mhm. भैया एडमिशन कैसे लेना है वो तो बता दो. सो एडमिशन के लिए आपको पहले तो एनएमएमएस की वेबसाइट पे जाना है. आपको जस्ट जाकर नॉर्मली क्या टाइप करना है, एनएमएमएस बीटेक एडमिशन. जस्ट आपको गूगल पे टाइप करना है, आपको आ जाएगा सबसे पहला. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल एनएमएमएस की वेबसाइट है जहाँ से एडमिशन प्रोग्राम होता है. यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा नीचे प्रोग्राम्स ऑफर्ड, बीटेक इन पार्टनरशिप विद वर्जीनिया टेक, नॉर्मल बीटेक, बीटेक प्लस एमबीए टेक 5 years प्रोग्राम, एंड बी फार्म प्लस एमबीए फार्म टेक, इसको हम बोलते हैं फार्मा टेक. सो यहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम में चाहते हो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो. कोई भी एक प्रोग्राम में अप्लाई कर देना, आप एलिजिबल सारे प्रोग्राम में रहोगे, ये चीज याद रखना. जस्ट आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एनएमआईएमएस सीईटी के ऊपर. अभी एनएमआईएमएस सीईटी का भैया सिलेबस क्या है वो तो बता दो. सो एनएमआईएमएस सीईटी का अगर आपको सिलेबस जानना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजीनियरिंग एंड फार्मा टेक हैंड्स आउट. यहाँ पे ब्रोशर भी है. यहाँ पे आपको पास्ट ईयर सैंपल पेपर्स भी मिल जाएगा. सो वेट. सो यहाँ पे आप देखोगे तो एनएमआईएमएस सैंपल पेपर, ये सैंपल पेपर 2021 का है. ये सैंपल पेपर आप एक बार सॉल्व कर सकते हो, ये शिफ्ट में पूछा गया था. 2021 का पेपर है, पुराना पेपर है, बट फॉर अ प्रैक्टिस इट्स अ गुड. आप देख सकते हो कौन से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. सेकेंडली आप इंजीनियरिंग टेक ब्रोशर जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ मिलेगा अबाउट द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम क्या है, कौन कौन से डिग्री ऑफर हो रही है, क्या क्या प्रोग्राम ऑफर करते हैं, थोड़ा सा आप रीड कर सकते हो रिगार्डिंग इट. बाकी नेक्स्ट जाओगे तो सिलेबस के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है. ये सिलेबस, इस सबकी लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सिलेबस की भी. आप जस्ट जाना वहां से सिलेबस डाउनलोड कर देना. बाकी अगर आपने नीचे से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा तो व्हाट्सएप पे मैं ये वापस से शेयर कर दूंगा सारा सिलेबस का पीडीएफ, ब्रोशर्स का पीडीएफ, सब चीजें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे. और ये ग्रुप स्पेशली एनएमआईएमएस स्टूडेंट्स के लिए बना है. सो एनएमआईएमएस स्टूडेंट्स काइंडली ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे लिंक है, आप सभी के लिए बना हुआ है. फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना. एंड इंटरेस्टेड हो तभी ज्वाइन करना, ऐसे मत ज्वाइन करना बिकॉज लिमिटेड सीट्स है वहाँ पे भी. इवन नीचे हमने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है. आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा. आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो. सिलेबस वो सब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. बाकी आप वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे. अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. नेम ईमेल आईडी आपको जस्ट फिल करके रजिस्टर करके क्लिक कर देना है. वहाँ पे आपको फॉर्म की फीस आएगी, फॉर्म की फीस पे कर देना. सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो, सब चीज़ आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी. आप जाके एक्सप्लोर करो वेबसाइट. आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो. लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 20th मई. सो 20th मई को आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा. एंड डोंट मिस दिस चांस, दिस इज द लास्ट चांस यू कैन ऑप्ट फॉर अ गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटी. NMIMS is the ranked one in Mumbai overall, and after NMIMS we can go for the KJ Somaya. So NMIMS का चांस मत छोड़ो. 20 मई अभी भी लास्ट डेट है, जरूर अप्लाई करके रख देना. एंड इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, आपको सेंटर पे जाके देनी पड़ेगी. बाकी गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनएमआईएमएस, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप मेंशनड है, जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे डीएम करो, मुझे एडमिन को डीएम कर देना. मेरा नंबर भी आपको नीचे दे दूंगा. एंड इफ यू आर genuinely interested in our counseling program, so we are having our counseling program, a 3 months program starting from the day one of your admission process till your last day of your admission process. चाहे उसमें आपका वीआईटी वैलोर हो गया, बिटसेट हो गया, फिर आपके एमएसटी सीईटी के जितने भी कॉलेजेस है, विजेटीआई केजेस, विजेटीआई एसपीआईटी, डीजे सांगवी, अपना थाड़ोमल शाहानी, ठाकुर कॉलेज, जितने भी आपके सीईटी में कॉलेजेस आते हैं मुंबई के, पुणे के, सब चीजें हम काउंसलिंग प्रोग्राम में कंडक्ट करते हैं. ओवरऑल काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो. सो गाइस, फाइनल एडवाइस फ्रॉम सनवी. सनवी, कैन यू सजेस्ट एनीथिंग? So there's a very nice hint I'll give you guys.
SAT से भी NMIMS के लिए अप्लाई हो सकता है, so you guys can keep an eye out for that in case you've given SAT. मैंने दिया था क्योंकि VIT के लिए भी SAT applicable था. Or otherwise, I have personally done counseling with some kids. That's how I got into MPSTME. So I really recommend you guys कि करो. मुझे genuinely बहुत help मिला था. He is very clear about his stuff. वो ज़्यादा घुमा के नहीं. You'll get the details and you'll get the resources really well. So take some guidance. आपके लिए clarity बहुत मिल जाएगा जो भी आपको करना है आगे जाके. So guys, you can, if you have any doubts, just मुझे DM करो WhatsApp पे. नीचे मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा. आपको जो भी डाउट्स हो हम कॉल पे आराम से बात करेंगे. And you can opt for our counseling if you are genuinely interested in the counseling program. पूरा कंप्लीट काउंसलिंग रहेगा. 3 months तक पूरा चलेगा. आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, कैप राउंड का 1-on-1 काउंसलिंग का आपका फॉर्म बनेगा. प्रॉपर आपका पूरा पर्सनलाइज्ड फॉर्म बनेगा रिलेटेड टू योर इंटरेस्टेड कॉलेजेस. पूरा कैप 1, 2, 3. उसके बाद स्पॉट राउंड होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में. मैनेजमेंट राउंड्स भी होते हैं. सब चीजों से एडमिशन होता है. तो आपको सब चीजों की इनसाइट्स मिलेगी. एंड इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड इन काउंसलिंग प्रोग्राम, जस्ट डीएम मी. आई एम इंटरेस्टेड ऑन द व्हाट्सएप नंबर. दैट्स ऑल. वी आर एंडिंग दिस वीडियो. होप सो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इनसाइट्स मिली होगी रिगार्डिंग NMIMS. बाकी इंटरेस्टेड हो फटाफट रजिस्टर करो. 20 May इज द लास्ट डेट. 20 में से पहले रजिस्टर कर देना. So guys, that's all. We are closing this window. And finally, आपको जो भी doubts हो आप मुझे पूछ सकते हो. And WhatsApp group join करना मत भूलना. So guys, thank you Sanvi for providing us such information. Nice to have you on this channel. Thank you so much for having me. Best of luck to everyone who's applying. Yeah. So guys, that's all. We are closing them. So WhatsApp group join करना मत भूलना. चलो fine guys. Bye bye. See you and have a nice day.